Hi Ravi. Avinash. Hello. Getting my voice or not? Hello. 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 Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Avinash. How are you? All good? Good, sir. Okay. So yesterday you were not here? Yes, sir. Actually, yesterday I was traveling. Okay, okay. Okay. Go through the video. So yesterday we have finished the PCSE girder design. So today we will doing the slab analysis and design. So how to do that in Midas? It's very simple. First of all, we will discuss a little bit why it is required and why we need to do it. Yesterday is also little bit we have discussed. Today also we're going to discuss. Let me share my screen. So generally what will happen, we have, why it will look like this? Mm, we have slab and then our bridges look like this. You will have one slab like this. And then we have our like girder, whatever kind of girder. It is not like that. This analysis is valid for PCSC, steel, RCC, not you can even design with the RCC, yes. RCC or any kind of slab you can design by this method. Girder. So even it's PCSC, it doesn't matter. Even it's RCC because we are right now discussing about the slab design. Like this. So like if you have, 3, 4, whatever and kind of girder you have available. Even I have drawing also. I will open that drawing which we are doing for analysis. What we required is we are doing transfer. So in transfers, it will come. This is my slab. These are girder. So if you see, my slab is a part of girder, but is also supported on the you can girders also. So generally, what we do in design of slab, we assume girder as a support condition, like it will provide support to your slab. So it's very simple that we model slab as a continuous element with the cantilever arms. So this will be cantilever up to this position, then this continuous, 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 and this cantilever. So you do not require any special information to design a slab. Only need to be model the slab for 1 meter width and at any location, because all over the bridge your slab will be constant. Only at support location it have the higher width, because higher width is required, nothing just because of design, just for our purposes also it will the part of your girder also and everything. So only at support little bit higher, like if I show you the section, this is a section. So only at this position is the higher width. That's because there is a cavity is coming for the expansion joint. So that's why you require the higher width, because expansion joint will going to come at this location
Otherwise, our normal slab will be okay. If you can see slab is going up to this position. After that, it is coming. This width have been increasing. Because of this, expansion joint needs to be installed in the slab. That's why only. So this is my Sir, same. Yes, Avinash. सर ऑडियो क्वालिटी से नहीं आ रहा. ऑडियो क्वालिटी सही नहीं आ रहा. हाँ, रुक रुक के आवाज आ रहा आपका. एक let me one moment. हेलो, यस सर. अब आ रही है सही आवाज? हाँ सर. ठीक है. तो ये हमें मॉडल करना होता है, और बस इसको मॉडल भी नहीं, अगर तुम चाहो तो मैनुअली भी सॉल्व, लेकिन मॉडल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रुक क्या स्लैब रही सर नेटिंग में आवाज. करना. रुक रही है एक ऐसा. हेलो. हाँ, अब देखो आवाज रुक हेलो. रही है क्या आवाज? हेलो हेलो. जी जी, इधर तो आ रहा है. हेलो. आ रही है सर, आवाज क्लियर आ रहा है. मे बी अविनाश, चेक योर नेटवर्क. check your network. Getting something error in your. Priyanka, yesterday you was not here also. We designed the girders directly, everything. We have discussed all the design detail and all. Maybe see the lecture. If you have any doubt, you can ask also. So I will explain later on if you still found any doubts. So what we need to do, we need to model this thing, and then we have IRC 6 note. We required IRC 112. Sir, एक चीज, do you Yes. go for like continuous one or is it like simply supported? Slab. नहीं, स्लैब मतलब जो आप जब स्पैन अरेंजमेंट चूज करते हो ना. हाँ, ओके. हम हमेशा सिंपली सपोर्टेड ही चाहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस पहली बात तो काम करना मुश्किल होता है और डिजाइन करना भी मुश्किल होता है. क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा तुम्हारे सेकेंडरी मूवमेंट्स आ जाती है और सेकेंडरी लॉसेज आ जाते हैं अगर पीटी है, और अगर नॉर्मल आरसीसी है तो उसमें हमारे सेकेंडरी मूवमेंट्स आ जाते हैं. वैसे तो वो अच्छा होता है कंटिन्यूअस, लेकिन डिजाइन करना, उसका प्रेडिक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और दूसरा साइड पे बनाना, उसको प्रोफाइल को पैराबोलिक ले जाके फिर रिवर्स पैराबोलिक लेके जाना, जी जी. वो भी दिक्कत होता है. लेकिन अवॉइड जो करते हैं. हाँ बताओ. कैंटिलीवर जो बैलेंस वाले करते हैं उसमें तो यही करते हैं ना. वो बैलेंस कैंटिलीवर में इसलिए करना पड़ता है, बैलेंस कैंटिलीवर डिफरेंट होता है, कंटिन्यूअस गर्डर अलग हो गया. बैलेंस कैंटिलीवर में हमारा कैंटिलीवर एक्शन होता है. उसमें तो हम स्पैन बाय स्पैन 3-3 मीटर का कास्ट करते रहते हैं और केबल प्रोवाइड करते रहते हैं. वो हमेशा बहुत बड़े स्पैन के लिए होता है, जिसमें स्पैन हमारा 100 मीटर से ऊपर चला जाता है बैलेंस कैंटिलीवर के लिए. लेकिन अगर तुम्हें कंटिन्यूअस करना है, कंटिन्यूअस का एक फायदा ये होता है, मैं बताता हूँ. जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, जब वैसे तो ये रहता है, अगर तुम्हारे पास नॉर्मल गर्डर है, अब तुम्हारे पास स्पैन आ रहे हैं 30-30 मीटर के, ठीक है. अब वो सिंपली सपोर्टेड है. अब वो कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है भाई मेरी बहुत सारी बेयरिंग भी यूज हो रही है और मेरी पीटी भी ज्यादा जा रही है, तो वो क्या बोलेगा, भाई इसे 2 स्पैन या 3 स्पैन कंटिन्यूअस कर दो, जिससे मेरी पहले तो बियरिंग की कॉस्ट बचेगी, दूसरा पीटी एक बार में कर दूंगा मैं 60 मीटर की 90 मीटर की, उसकी कॉस्ट बचेगी, तीसरा पीटी प्रोफाइल एक ही में ही चली जाएगी. बस मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉप में भी पास होना है और बॉटम में भी पास करना है. कभी कभार डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है बस. तो कॉन्ट्रैक्टर तो चाहता है कि कर लूं, लेकिन डिजाइन से कभी कभार डिजाइन पास नहीं होता, कभी कभार कुछ और इश्यू होते हैं, कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर चाह के भी नहीं कर पाता, क्योंकि टॉप में वहां जो एंड डायफ्राम का सेक्शन होता है ना, जहाँ पे कंटिन्यूटी हमें मेंटेन करनी होती है, लॉन्ग टर्म में वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं. अगर कभी ब्रिज देखा होगा ना, मतलब जो कंटिन्यूअस ब्रिजेस होते हैं उसमें स्लैब हल्की सी सपोर्ट लोकेशन पे उठ जाती है लॉन्ग टर्म में. शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, मतलब जैसे 30 साल हो गए या और ज्यादा ईयर हो गए,
उससे क्या होता है, जब वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूस हर टाइम रहता ही है, तो स्लैब हल्की सी ऊपर को भी चली जाती है। तो उससे एक तरीके से आपकी रोड क्वालिटी और ये सब भी काफी खराब हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूस का एक फायदा ये होता है कि आपके सेक्शन बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। एक ही सेक्शन आप थ्रू आउट फॉलो कर सकते हैं। आप बेयरिंग रिड्यूस कर सकते हैं, आप पीटी कम कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट काफी चीजें कम भी कर सकते हैं। पीटी कम हो जाती है, सेक्शन यूनिफॉर्म हो जाता है, बेयरिंग कम हो जाती है। और लेकिन कंटिन्यू को मेंटेन करने के लिए बस ये कोई वर्कमैनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंपली सपोर्टेड में तो आप गर्डर लेकर आए और लाके रख दिया, लेकिन सिंपली अब कंटिन्यूस में तो आपको कास्टिंग सीटो ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप थ्री स्पैन तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो कास्टिंग यार्ड में कास्ट करोगे उनको लाके जोड़ दोगे। वो तो वो होती है फिर मैच कास्टिंग, वो ज्यादातर ब्रिजों में नहीं करते हैं, वो मेट्रो में करते हैं मैच कास्टिंग जो होती है, या फिर सेगमेंटल बॉक्स गर्डर में करते हैं। नॉर्मल गर्डर में मैच कास्टिंग नहीं करते। उसमें ये पूरा क्या टर्म यूज किया आप अभी? है अभी टर्म यूज किया ना क्या? मैच मैच कास्टिंग, मैच मैच कास्टिंग। ओके। मैच कास्टिंग ये होता है कि आपको कास्ट करा जाता है इस तरीके से कि वो साइट पे जाके दोबारा मैच हो जाए। उसकी अलग से पूरी शटरिंग डिजाइन होती है और बनती है उसी हिसाब से कि उसी तरीके से कास्ट किया जाए, फिर उसी तरीके से जाके वो साइट पे हम जोड़ दें। लेकिन वो हम कभी ब्रिज में नहीं करते हैं, वो हम करते हैं स्टेशन में ज्यादातर, और इसमें करते हैं हम सेगमेंटल बॉक्स गर्डर में बस। अगर सेगमेंटल बॉक्स तो देखा ही होगा सबने, ज्यादातर जो अपने मेट्रो हर जगह होता ही है, जो 3-3 2-2 मीटर के सेगमेंट्स आते हैं और लॉन्चर उस पर चलाते हैं, फिर वो लॉन्चर से जोड़ दिया जाता है। तो वो हम कर सकते हैं सेगमेंटल ओनली। उसमें वो भी मैच कास्टिंग ही होती है, लेकिन वो भी सिंपली सपोर्टेड के लिए होती है। कंटिन्यूअस के लिए आपको हमेशा नीचे शटरिंग प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, मतलब आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा जमीन से, समझ रहे हैं? आप प्री कास्ट नहीं ला पाओगे, या वो कुछ भी गर्डर प्री। में हाँ, गर्डर में सपोर्ट दे देंगे ना सर, उसका वो सेक्रीफाइस सेटरिंग जो होता है उसके लिए। नहीं नहीं, तो कहाँ से दोगे? जैसे अगर मेरे पास गर्डर का मेरे भी पास 30 मीटर बॉटम का प्लान स्पैन है, है, ठीक है। अब बॉटम प्लान है। जैसे कहीं भी कुछ भी ये मान सब लो, चलो एक ये हो गया स्पैन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 स्पैन है, ये कॉलम है यहाँ पे, ये कॉलम है, ठीक है। अब तुम ठीक है। इसको सबको एक साथ कास्ट करना चाहते हो क्योंकि आपको पीटी देनी है, तो या तो हाँ पहले यहाँ शटरिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, फिर इसको चलो कास्ट करके छोड़ दिया, फिर यहाँ शटरिंग प्रोवाइड करी, इसको शटरिंग को हटा दिया, फिर यहाँ कर दिया। लेकिन पीटी तो उससे पहले करनी पड़ेगी ना, वरना शटरिंग रिमूव नहीं कर सकते ना परमानेंट डिफो, वो तो गिर जाएगा। नहीं नहीं, शटरिंग सर वो एक वो शीट वाली शटरिंग होती है, सेक्रीफाइस शटरिंग, वो उसको रिमूव करने का जरूरत नहीं है, उसमें भी रहेगी वो। नहीं नहीं नहीं, वो होती है स्लैब के लिए, स्लैब का गर्डर ही के। मैं बात कर रहा था। ना ना, बात हो रही है गर्डर की। ये जो पूरी बात हो रही है गर्डर की होती है, मुझे पता है स्लैब की तो आती है सैक्रिफिशियल प्री शटरिंग, ये तो स्ट्रेसिंग की गर्डर बात की नहीं बात कर रही है कर ना, रहा क्योंकि गर्डर जो है, अगर स्लैब तो कंटिन्यूस कर सकते हैं, ऐसा होता है गर्डर प्री कास्ट लाए और स्लैब कंटिन्यूस कास्ट कर दी, वो भी होता है, उसको कहते हैं डेक कंटिन्यूटी। हाँ, क्योंकि हम लोग के उधर है सर, हाँ, ये इंटीग्रल ब्रिज इसको है, कहते हैं, उसमें तीन इसको कहते हैं तीन। डेक कंटिन्यूटी। और इसको कहेंगे सिंपली सपोर्ट, मतलब इसमें सिर्फ डेक कंटिन्यूस होता है, लेकिन गर्डर वो होते हैं सिंपली सपोर्टेड होते हैं। ये भी अच्छा होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका एक्सपेंशन जॉइंट का बहुत ज्यादा वो बच जाता है, पैसा बच जाता हाँ है, क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है 2 स्पैन में, आप डायरेक्ट 3 स्पैन के बाद इंस्टॉल करोगे। और इससे थोड़ी हाँ हमें वो भी बिल्कुल। मिलती है इम्प्रूवमेंट गर्डर के लिए, क्योंकि वो सैगिंग हॉगिंग में रेजिस्ट कर जाते हैं। प्रोवाइडेड ठीक एन है, ऑप्शन अगर इंटीग्रल ब्रिजेज का और इसका फिर आए तो फिर क्या देखो प्रेफर? ये सब जो डिपेंड करता है, सबसे पहले हमें देखना होता है साइट का सर्वे, ओके। कि हाँ सर्वे, जैसे हमें सर्वे में मिलता है टोपो। जी। आपको टोपो पता चला कि भाई टोपो में ये होता है कि कहाँ से मेरा क्या रोड जा रहा है और नया रोड क्या बनने वाला है, और मेरी रिक्वायरमेंट ब्रिज की कहाँ से कहाँ तक है, उसमें डिसाइड करते हैं हम बस जी। नॉर्मली कि जैसे अब कहीं कुछ भी एक खाली रोड नया बनाना है, यहाँ से यू निकालना है रोड, या फिर रेलवे है कि रेलवे की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, तो वहां से ब्रिज निकालना है कुछ भी, तो वो टोपो से पता चलता है। आसपास बिल्डिंग कितनी है, आसपास कुछ और तो चीज नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज या गवर्नमेंट की कोई जगह तो नहीं है, वो सब टोपो में आता है। तो टोपो में इनिशियली ये हमें सर्वेयर करके दे देता है टोपो, कि भाई ये है, और अलाइनमेंट अलाइनमेंट देता है हमें हाईवे इंजीनियर, तो अलाइनमेंट मार्क करके हम टोपो करके सारी इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं।
फिर वो हमारे पास आती है कि हाईवे इंजीनियर रफ एक बता देता है कि ये मेरी प्रोफाइल जाएगी। अब तुम डिसाइड करोगे ब्रिज, वो एक रफ दोनों एक डिसाइड करते हैं कि ब्रिज यहाँ से चालू करोगे, यहाँ से करोगे, या कहीं और से करोगे, जहां से रिक्वायरमेंट है थोड़ा आगे पीछे हम कर लेते हैं। अनटिल अनलेस वो सी ब्रिज है या फिर रिवर ब्रिज है या फिर अपना ये माउंटेन ब्रिज है, उसमें तो पता होता है भाई वो एच से ही चालू करेंगे, मतलब जहां पे भी हमें रॉक की एंकरिंग मिल जाए वहां से चालू कर देंगे। लेकिन अब नॉर्मल ब्रिजेस हैं तो इसमें देखना पड़ता है, जैसे रेलवे है तो रेलवे की बाउंड्री से कुछ दूर से चालू करना पड़ता है कि जो बाउंड्री है उस पे पूरा हमारा स्पैन आए। वहां पे हमें कुछ भी आरसीसी का या फिर हमारा अबटमेंट रेलवे की बाउंड्री के अंदर नहीं आना चाहिए, हमेशा रेलवे के बाउंड्री के बाहर होगी सब चीजें। जो भी अबटमेंट होगा रेलवे की बाउंड्री के अंदर सिर्फ आपका स्टील गर्डर्स होंगे और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे रेलवे की करते हैं प्लानिंग। अब हमारे पास कोई रोड है, जैसे हम रोड रोड ओवर ब्रिज होते हैं ना या अंडर पासेस होते हैं, तो उसमें भी ये प्लानिंग करते हैं कि भाई कितने विड्थ के अंडर पास रखना है, फिर उससे दूर पे अपना ब्रिज हम चालू कर देंगे। और फिर स्लोप गिरा लेते हैं कि हाईवे इंजीनियर ही वैसे ये वाला स्लोप दे देता है सॉइल वाला, तो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सॉइल फिलिंग होती है बस। और जियो ग्रिड्स आ जाते हैं, वही री आरी वॉल्स आ जाती हैं साइडों में। तो वो तो सब टिपिकल रहता है, लेकिन ब्रिज की शुरुआत और ये सब ये हाईवे इंजीनियर ब्रिज इंजीनियर मिलके दोनों एक साथ करते हैं। तो ये होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर। ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी में ही आ जाती हैं, या डीबीआर बनता है इसका, अपने हाईवे का डीबीआर बनता है ना, यस, तो उसमें आ जाता है ये सब। या फिर उसको डीबीआर भी नहीं और बहुत से और भी नाम से डीपीआर कहते हैं। पे एक तो होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होता है, और डिजाइन क्राइटेरिया रिपोर्ट भी होता है। कुछ कुछ जगह डिजाइन क्राइटेरिया भी कहते हैं, कुछ जगह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं, अलग अलग टर्म्स है। लेकिन डीबीआर में हम इनिशियली ये डिसाइड कर लेते हैं रोड कहाँ से कहाँ निकल रहा है और कहाँ से कहाँ तक हमारा ब्रिज रहेगा। और फिर इसका अब आता है मतलब, हाँ फिर इसमें हम स्पैन डिसाइड करते हैं। अब स्पैन डिसाइड करने में ही हमारा सब कुछ होता है कि अगर मैं 30 मीटर के अंडर हूँ और मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं है, तो मैं हमेशा यूज करना चाहूंगा सिंपली सपोर्टेड अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्टर आस्क मी टू डू दी डेक कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस ब्रिजेस। जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई थर्ड पार्टी ना बोले, हमेशा सबसे पहला हमारा इंट्यूशन होता है कि हम सिंपली सपोर्टेड बनाएंगे, क्योंकि सबसे जल्दी कंस्ट्रक्ट होता है, सबसे आसान होता है डिजाइन करना भी, साइट पे काम करना भी। आप प्री कास्ट लेकर आ जाओ या कास्टिंग सीटू कर लो, जो चाहे कर लो, सिंपली सपोर्टेड में सब कुछ हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन हमेशा यही होता है। पहले हम जैसे जो स्टार्ट पॉइंट ये हुआ, एक मिड पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या स्पैन है और यहाँ से यहाँ तक का, तो हम कोशिश करते हैं टिपिकल स्पैन यूज करने की, मतलब जो या तो हमने पुराने डिजाइन करे हुए हो या जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादातर, जैसे टिपिकल स्पैन कैसे होते हैं 24 मीटर का, 30 मीटर, 36 मीटर, ये होते हैं टिपिकल, मतलब जो मीटर में चलते हैं, या 48, 54, 60, 72। तो ये होते हैं टिपिकल स्पैन अरेंजमेंट की, इनको लेके चलें, फिर डिजाइन करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि इनकी ड्राइंगें ज्यादातर हर टाइम अवेलेबल होती हैं। इंपॉर्टेंट टास्क होता है ड्राइंग बनाना, क्योंकि ड्राइंग बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इतना तुम्हारा डिजाइन में भी नहीं जाएगा जितना ड्राइंग में चला जाता है अगर शुरू से बनाने बैठोगे। अगर किसी ब्रिज की ड्राइंग शुरू से विदाउट एनी रेफरेंस बनाने बैठोगे तो डिजाइन से डबल टाइम चला जाएगा सिर्फ ड्राइंग जनरेशन में, क्योंकि पहले बनानी पड़ेगी डायमेंशन ड्राइंग, फिर बनानी पड़ेगी उसकी रीइंफोर्समेंट ड्राइंग, और फिर और भी वो बनती है, मिसलेनियस ड्राइंग भी बनती है कुछ, जैसे अगर हम लोग के आरओबी है इधर तो है सर, है। वो हम लोग के इधर है मालदीव में, हम लोग बना रहे हैं सी ब्रिज है हाँ वो, इंटीग्रेटेड ब्रिज है, उसका 3 स्पैन का स्लैब हम लोग एक साथ करते हैं। उसे कहते हैं डेक कंटिन्यू। वो उसका गर्डर कैसे है, गर्डर के बीच दो बियरिंग है इस पे या फिर सिंगल बियरिंग बेयरिंग है। बेयरिंग नहीं डालना सर, इंटीग्रल ब्रिज है, इंटीग्रेटेड। नहीं इंटीग्रल मतलब डेक तो कंटिन्यूस समझ में आ गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जो बियरिंग है एक पियर के ऊपर, वो एक बेयरिंग बियरिंग है या दो बेयरिंग बियरिंग है। बेयरिंग नहीं है सर किसी अच्छा में भी। बेयरिंग ही नहीं है, इंटीग्रल है, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा बेयरिंग दे ही नहीं रहे तो उसमें पियर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस आ रही होंगी, अगर ये बेयरिंग कर दे रहे नहीं होंगे। रहा सर। हाँ हाँ ठीक, वो भी अच्छा है अगर तुम बियरिंग हटाओगे तो, लेकिन उसमें यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट आएगा वो बहुत ज्यादा आ जाता है फिर। ये चीज जो होती है हाँ बहुत डायफ्राम, कंजेस्टेड होगी, कंजेस्टेड हो डायफ्राम गई में, हाँ होगी। ये हाँ डायफ्राम बहुत लोकेशन पे डायफ्राम में बहुत बहुत ज्यादा। कंजेस्टेड हो जाती है क्योंकि केबल बहुत सारी निकालनी पड़ती हैं, और फिर ये ट्रांसफर डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट में बहुत आता है।
डायफ्राम का अपना रीइंफोर्समेंट होता है, पीटी प्रोफाइल जारी होती है, बेयरिंग है ही नहीं, तो मतलब कंस्ट्रक्शन के तौर पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी अब तुम इसको जब कर रहे हो तो प्रीकास्ट लेकर आ रहे हो, कास्ट एंड सीटू कर रहे हो? ये गर्डर तो प्रीकास्ट आ रहा था। अच्छा, गर्डर प्रीकास्ट लाके वो एंड डायफ्राम कास्ट एंड सीटू हाँ होगा उसके साथ जोड़ दे रहे होगे, हाँ, है ना? यही कर रहे होगे, प्रीकास्ट मतलब प्री गर्डर टेंशन, है। प्रीकास्ट प्री टेंशन। अच्छा, प्रीकास्ट प्री टेंशन ही गर्डर ला रहे हो? यस सर। ओके। और यहाँ पे क्या पूरा रीइंफोर्समेंट दे रहे होगे टॉप में? तो टॉप टॉप में क्या मेंटेन कर रहे हैं? टॉप में पीटी नहीं दे रहे या देते हैं बाद में कास्ट करने के बाद? नहीं नहीं, कुछ नहीं है सर, उसमें तो डेंस रीइंफोर्समेंट तो होगा, रिइंफोर्समेंट है वहां पे बहुत। है? देन हाँ, हाँ, रिइंफोर्समेंट तो है सर। वो गर्डर का भी निकला हुआ है उसमें, दोनों तरफ से गर्डर का भी हाँ प्लस हाँ, एक मतलब स्टैक का किसी भी चीज से तो रिइंफोर्समेंट रजिस्ट निकला करना हुआ है। पड़ेगा, या तो पीटी से करो या रीइंफोर्समेंट से करो। सिंपल। रिइंफोर्समेंट। हाँ, रीइंफोर्समेंट से कर रहे हैं, हाँ तो वो भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन वही यही मैं चीज कह रहा हूँ, ये चीज तो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है जब हम इनिशियली, हमेशा हमेशा होता है हमारा टारगेट की सिंपली सपोर्टेड लेके चले, लेकिन ये जो डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके बैठने पे, और या तो अगर गवर्नमेंट के लिए कि वो देख रहा है भाई मेरा बेयरिंग का पैसा बच गया कंटिन्यूस ब्रिज में, मेरा एक्सपेंशन जॉइंट का पैसा बच गया, और कौन सा पैसा और हाँ ये दो बच, क्योंकि इसमें काफी खर्चा आता है, और फिर दूसरा खर्चा ये आता है, आपको बेयरिंग और एक्सपेंशन जॉइंट कुछ साल बाद रिपेयर कराने होते हैं, हर 10-20 साल बाद उनकी जब लाइफ खत्म हो जाती है, तो देखा ही होगा हर ब्रिज के एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग चेंज होते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म मिल जाते हैं ये ब्रिजेस। और दूसरा चीज क्या नाम है, रीइंफोर्समेंट डायरेक्ट ये सब चीजें दे दी, आप थ्रू आउट सेम, ये जो स्पैन होता है मेरा, ये भी सेम जाता है, अगर मेरे स्पैन सेम है तो गर्डर भी इकोनॉमिकल डिजाइन हो जाते हैं। तो ये जो होती है चीज, ये हम तभी डिसाइड करते हैं जब हम पहला प्रपोजल देते हैं सिंपली सपोर्टेड का, लेकिन उसके बाद हमारा कमेंट आता है भाई नहीं हमें तो पैसा बचाना है, तुम तो कंटिन्यूस दो, डेक कंटिन्यू कर लो, ये कमेंट के बाद करते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप कभी भी ब्रिज स्टार्ट करें, मतलब इनिशियली स्टार्ट करें डिजाइन करना, तो अगर कोई जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, या तो आपको पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इनिशियली, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये अलाइनमेंट कोई एक बंदा नहीं बैठता है, इस पर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं पीपल, टॉप टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम मैनेजमेंट सब इन्वॉल्व होता है, अलाइनमेंट देख रहे होते हैं कहाँ से क्या जा रहा है। तो हर कोई इनिशियल सबसे पहले बोलेगा भाई नहीं भाई सिंपली सपोर्टेड कर दो, तो सिंपली सपोर्टेड, फिर कोई बोलेगा नहीं सिंपली सपोर्टेड में तो हमारे बीयरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी एक्सपेंशन जॉइंट की कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे हमारे गर्डर भी इकोनॉमिक नहीं आ रहे हैं, उनका डेप्थ भी ज्यादा आ रही है, तो एक काम करते हैं 2 स्पैन कंटिन्यूस कर लेते हैं, या फिर वो देख रहे हैं गर्डर का स्पैन और छोटा है तो 3 स्पैन कंटिन्यूस कर लेते हैं। तो जब 3 स्पैन कंटिन्यूस कर लेते हैं, इनिशियली एक स्कीम डिसाइड कर ली, उसके बाद फिर हम उसके हिसाब से एनालिसिस चालू करते हैं। अब अगर कंटिन्यूस है तो ये हमें पूरा का पूरा एक साथ मॉडल करके एक साथ एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं कंटिन्यूस ब्रिज में, ये वाले जो डायफ्राम लोकेशन के होते हैं। तो तुम्हारा बॉक्स गटर है या नॉर्मल आई गटर है? नॉर्मल आई गर्डर। आई गटर ना? हाँ। यस। और प्री टेंशन लेकर आ रहे हैं तो इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्री टेंशन होगा ये पहली। इस केस में सर हम लोग डिजाइन करने से पहले जो हम लोग डिजिट फिक्स करते हैं वो तो हम लोग पीयर हम्म। पीयर में कर देंगे, बियरिंग से देने की जरूरत, बियरिंग से अलग से नहीं नहीं डिजाइन करने। नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है कौन सा अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हो। अब आजकल जो कंटिन्यूअस ब्रिजेस हो रहे हैं वो बेयरिंग के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि अगर तुम पियर में फिक्स कर रहे हो ना, उसके चक्कर में क्या होता है कि पियर में बहुत ज्यादा आ, उनके रीइंफोर्समेंट आता है और फाउंडेशन भी हैवी हो जाती है थोड़ी, मतलब पता नहीं रिजिड चलेगा तुम्हें लिंक। वो हो चुकी होंगी, क्योंकि इंटरनली क्या करा होगा डिजाइनर ने, अब पता नहीं पहले कि विद विद बियरिंग चेक किया था नहीं किया था, क्योंकि अगर बियरिंग चेक करोगे तो उसका फायदा ये होता है, जो भी ये सुपर स्ट्रक्चर में मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे, वो मूवमेंट हमारा पियर में नहीं जाता अगर बियरिंग रखी हुई है, लेकिन अगर बियरिंग नहीं है तो मूवमेंट बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि शियर फोर्स तो आएगी आएगी, वो तो सबको पता है कि शियर फोर्स, अब उसके साथ साथ मूवमेंट भी ट्रांसफर होने लगता है, तो जो हमारा पियर का डिजाइन होता है और सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन होता है डिजाइन, वो काफी इंक्रीज हो जाता है, अगर किसी ने मतलब एज पर जो इंजीनियरिंग है वो हमेशा इंक्रीज होगा ही होगा। अब शायद यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं हो रहा होगा, स्पैन कितने का है आपका?
22 मीटर तक। हाँ 22 मीटर में तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो 22 मीटर में तो ठीक है। मतलब बेयरिंग रखने से और ना रखने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अगर ये स्पैन होता करीब आपका 40 मीटर, तो बहुत ज्यादा आपके मूवमेंट आ जाते पियर्स में और फाउंडेशन में। इसीलिए तो छोटे स्पैन है, इस वजह से ये कंटिन्यूस कर लिया और बेयरिंग अवॉइड कर दी और एक्सपेंशन जॉइंट भी अवॉइड कर दिए। तो ये भी एक चीज होती है, लेकिन ये सब डिसाइड होता है जब आप एक इनिशियल स्कीम फाइनल कर लो। पहले आप पियर की लोकेशन फाइनल करते हो कि मुझे 22-22 मीटर पे रखने हैं या 24-24 मीटर पे, 36 मीटर पे, जितने भी मीटर पे पॉसिबल है। ये सब टोपो के थ्रू होता है, फिर टोपो से दोबारा मार्किंग होती है, फिर दोबारा अरेंजमेंट चेक होता है, फिर एक फिजिकल रिव्यू होता है, फिर उसके बाद सॉइल देखी जाती है कि भाई जो हम स्पैन अरेंजमेंट रख रहे हैं कि वो पॉसिबल भी है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे नीचे यूटिलिटीज मिल सकती हैं या कुछ और मिल सकता है फाउंडेशन में। फिर उसके बाद एक चेक वो भी कर लेते हैं कि कोई केबल्स तो नहीं जा रही, कोई सीवेज तो नहीं जा रहा, या कोई और स्पेशल रिक्वायरमेंट, क्या रेलवे के बहुत पास तो नहीं है कि रेलवे मेरी यहाँ से जा रही हो, तो ये फाउंडेशन कहीं रेलवे के जो ब्लास्ट होता है उसको तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही, या उसको तो नहीं हटाना पड़ेगा, या नॉर्मल मेरा हाईवे है तो उसमें तो ये नहीं आ रही। तो ये सब चीजें एक हमें मार्किंग के बाद तब कंफर्म होती है। बट इनिशियली ये होता है, जैसे हमारा टोटल ब्रिज की लेंथ पता चल गई, हमारे पास 90 मीटर का है, तो हम कोशिश करते हैं 90 मीटर को इक्वली स्पैन में डिवाइड करना। या तो हम 4 स्पैन में कर दें, 3 स्पैन में कर दें, और 5 स्पैन में कर दें। और उसके हिसाब से फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हम लोकेशन दे सकते हैं। कभी कभार आप 5 स्पैन में पॉसिबल नहीं होता, तो हम मतलब बोले बहुत करीब होगा स्पैन, तो 4 में जाएंगे। फिर 4 में एक स्पैन छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और बाकी स्पैन एक ही लेंथ के रख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करी जाती है कि स्पैन एक साइज के रखे जाएं। जैसे ये मेरे 3 स्पैन में डिवाइड कर दूं मैं 90 को, तो 30-30 के 3 स्पैन यूज कर रहा हूँ। अब लेकिन मुझे बाद में पता चला भाई ये मैं नहीं रख सकता, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी एडजस्ट कर दूं इस तरीके से कि 40-40 करके, और एक नहीं 40 तो नहीं, जैसे 36-36 करके एक 18 का ले लूं या कुछ और कम का ले लूं। तो ये कोशिश करी जाती है कि 2 स्पैन फिर सिमिलर करके एक स्पैन ऑड कर दूं। इनिशियली सारे स्पैन सेम रखने की कोशिश की जाती है। कितना भी बड़ा वायडक्ट हो, कितना भी बड़ा ब्रिज हो, हमेशा कोशिश ये करी जाती है कि आप टिपिकल स्पैन रखें। टिपिकल स्पैन का मतलब सारे स्पैन की स्पेसिंग सेम हो। जैसे ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, अनटिल अनलेस सम स्पेशल कंसिडरेशन और रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर स्पैन अरेंजमेंट। क्योंकि उससे हमारा फायदा ये है, हम एक ही बार सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे और सारे स्पैन पे लगा देंगे। अब इसमें दूसरी फिर चीज क्या है कि अब कंसल्टेंट बोलेगा भाई हमने तो सिंपली सपोर्टेड के लिए इनिशियली, अब क्या करते हैं, हम एक स्कीम फाइनल करते हैं कि हम जीएडी बना के सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर को भी हम सिंपली सपोर्टेड रख के ये स्पैन अरेंजमेंट है और ये करना चाहते हैं। मतलब इनिशियली स्टेज ऐसे चालू करते हैं ब्रिज की कि कुछ डेटा मिला टोपो, उसमें हमने अपने पियर गाड़े, अपने हिसाब से लेंथ लैंड डिसाइड करी, हाईवे हाईवे इंजीनियर के साथ बैठ के अपने पियर लगाए, स्पैन दिखाया, ये आ रहा है। अब चाहे तुम अभी कुछ मत दो, बस ये वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एक ड्राइंग में बना के फॉरवर्ड कर दो कि भाई ये करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर कमेंट आएगा भाई अगर ये 3 स्पैन हो रहा है, हम आरसीसी गर्डर यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें कंटिन्यूस कर दो कि मेरा यहाँ का झंझट ही खत्म हो जाए पियरिंग का। लेकिन जब तुम कंटिन्यूस करोगे तो वो पूछेंगे डिजाइन मैथोलॉजी क्या है, क्या तुम प्री टेंशन लोगे, या फिर तुम कास्टिंग C2 कर सकते हो डायरेक्टली यहीं पे अपने स्टेजिंग स्टेजिंग लगा के और कास्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, या कुछ और मेथड सेगमेंटल या फिर कोई और मेथड यूज करना चाहोगे, तो वो फिर डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्टर और जो भी हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिज तो ज्यादातर गवर्नमेंट के लिए बनते हैं, तो गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके डिजाइनर डिसाइड करते हैं कि भाई अगर उसको ठीक है सिंपली सपोर्टेड, वो नहीं चाहता ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रिज, हाँ भाई जल्दी कास्ट होगा, हर चीज जल्दी बनेगी, क्योंकि वो तो ब्रिज बना के चला जाएगा, बाद में तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी बेरिंग चेंज करना और एक्सपेंशन जॉइंट लगाना, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। उसके तो पैसे होते हैं कि उसने अगर ये 10 करोड़ में लिया है तो वो तो चाहेगा कि 9 करोड़ में कंप्लीट करके मैं भाग जाऊं, तो वो सिंपली सपोर्टेड में, अब वो इसमें उसका ज्यादा फायदा है, वो बेरिंग दिखाएगा और एक्सटेंशन जॉइंट दिखाएगा, तो वो ज्यादा क्लेम कर पाएगा और उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि वो जितना सिंपल हो और उसको उतना ज्यादा पैसा मिले,
लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहेगी भाई, मुझे तो बेयरिंग नहीं चाहिए, मुझे एक्सपेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में 10-20 साल बाद मुझे चेंज करने पड़ेंगे, मुझे ब्रिज ऑब्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मुझे लाइव लोड बंद करना पड़ेगा, जाम लगेगा, ऊपर से कॉस्ट बढ़ेगी, जो चेंज करेगा वो अलग पैसे लेगा, और बेयरिंग के अलग पैसे, एक्सपेंशन जॉइंट के अलग पैसे। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट तो ये भी बोल सकती है गवर्नमेंट की, गर्डर आप कास्टिंग सीटू लिया और स्लैब वो कर दो, कंटिन्यूस कर दो, तो उसे डेक कंटिन्यूटी बोल देते हैं कि डेक कंटिन्यूस कर लो। तो ये सब जो होता है ये हम नहीं डिसाइड करते, हम तो हमेशा सबसे पहले इनिशियल सिंपली सपोर्टेड दे देते हैं, उसके बाद हमारे साथ सारी थर्ड पार्टीज और मेन गवर्नमेंट अथॉरिटीज और कॉन्ट्रैक्टर सबको मिलके एक साथ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें किसी एक का डिसीजन नहीं होता। जैसे अब मैं बोल दूं सिंपली सपोर्टेड, कल को कोई सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बोला भाई कंटिन्यू चाहिए था, तो मैं उनको बाईपास नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो काम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, वो जैसा बोलेंगे हमें वैसा करना पड़ेगा। हम तो एक इनिशियल ड्राइंग बना के देते हैं, फिर वो उस पर कमेंट देंगे या जो चाहे उसको चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। अब वो ऐसा भी कर सकते हैं कि बोलेंगे स्पैन चेंज कर दो, ये वाला 40 कर दो, ये 45 कर दो, तब हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, भाई हम नहीं कर सकते, हम एक स्पैन यूज करना चाहते हैं ताकि सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन जल्दी अप्रूव हो, जल्दी कास्टिंग चालू हो जाए, क्योंकि फिर सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन का डिजाइन भी टिपिकल हो जाता है। तो ये सारी चीजें वैसे तो सबको पता ही होती हैं, लेकिन जैसे कोई आ जाता है सन की वन की, तो उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन कराओ, फिर समझाओ, तो वो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। हर जगह नए नए बंदे आ जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से चेंज कराना चाहते हैं, तो जो पुराने से पता होता है वो एग्री कर जाता है, नया बंदा नहीं करता, क्योंकि ड्राइंग अप्रूव होने से पहले 10 जनों के साइन लगते हैं, तो जब तक वो फाइनल अप्रूवल नहीं होगी तब तक कास्टिंग नहीं हो सकती। अनटिल अनलेस मेट्रो है, मेट्रो का थोड़ा अलग रहता है, मेट्रो में तो बहुत स्पीड में काम होता है, एक ही बार में टोपो दिया, अलाइनमेंट दिया और चलते चले गए, उसमें तो सेम स्पैन रहते हैं। लॉन्ग ब्रिजेस या वायडक्ट हैं, उसमें तो चढ़ते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रिजेस जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 स्पैन तक, तो उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसी वजह से अब इंटीग्रल ब्रिज कहाँ यूज करते हैं, इंटीग्रल ब्रिज ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे फिर वहां पे सॉइल की कंडीशन भी देखी जाती है, और फिर देखा जाता है वो ब्रिज बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसी जगह चाहिए बिल्कुल परमानेंट स्टेट में, कि सॉइल भी रेजिस्ट कर लूं और काफी चीजें रेजिस्ट कर लूं। ये अपनी जैसे लूज सैंड है या वाटर वाटर फ्लो भी हो रहा है वहां से, तो उस टाइप में हम कोशिश करते हैं कि इंटीग्रल ब्रिज यूज कर लें, क्योंकि वो एक तरीके से सॉइल को भी रोकेगा, वाटर को भी रोकेगा। लेकिन अगर माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स क्या होते हैं, हार्ड रॉक होता है, तो उस पर हम अपनी फाउंडेशन को टिका लेते हैं आराम से, और फिर सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं। तो ये कंडीशन देखनी पड़ती है हमें, सॉइल की, इसकी, टोपो की, मतलब आसपास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जियोटेक पैरामीटर और हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर, इन सबको देख के इनिशियली फिर एक ब्रिज का मतलब प्रपोजल दिया जाता है, डिजाइन नहीं होता है, वो एक प्रपोजल दिया जाता है, फिर उसको हायर अथॉरिटी रिव्यू करती है, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी और बाकी अगर कोई हमारे ऊपर रिव्यूअर है या फिर कोई और डिजाइन चेक कर रहा है तो वो रिव्यू करते हैं, फिर वो अपने कमेंट देते हैं, नहीं भाई नहीं, ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसके हिसाब से तो ये कर दो, ये नहीं है तो ये कर दो, तो फिर जाके वो उस पर कमेंट दे के दे देते हैं, फिर हम दोबारा सबमिट करते हैं, तो ये चलता है कुछ 1-2 महीने, फिर जाके एक फाइनल डिजाइन, वो एक अलाइनमेंट फाइनल हो जाता है कि भाई ये अलाइनमेंट फाइनल हो गया, फिर एक बार हमारा अलाइनमेंट पीएल लोकेशन फाइनल हो गई और सुपर स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, फिर तो डिजाइन ही डिजाइन बचता है। लेकिन इसमें जो होता है ज्यादातर काफी सीनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं कि अलाइनमेंट में, और अपने इस सुपर स्ट्रक्चर कौन सा रखे ना रखे, इसमें ज्यादातर, क्योंकि ये ब्रिज का काम बहुत ज्यादा उसमें देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा के प्रॉफिट कमाया जाए। गवर्नमेंट तो पैसा दे देगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर चाहता है भाई अब तो पैसा नहीं कमाऊंगा तो फायदा क्या है, हर हर काम तो पैसे के लिए हो रहा है, हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो भी पैसे के लिए ही कर रहे हैं भाई, जॉब अच्छी हो, सुकून वाली, और अपने घर आ जाए, सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाए, तो हर किसी का मेन मोटिव तो एंड में पैसा ही आ जाता है। और एक प्राउड फीलिंग भी आती है कि आप कुछ कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट कर रहे हो जो नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, एक तरीके से वो भी फीलिंग रहती है थोड़ी ब्रिज डिजाइन करने में या कंस्ट्रक्ट करने में।
तो दोनों एक तरीके से, एक फीलिंग भी अटैच होती है और एक पैसा तो अटैच है ही, सेकेंडरी या प्राइमरी समझ लो। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आप इनिशियली अगर आपको कोई भी चीज मिले तो आपको पहले या तो टोपो चाहिए होगा उसका कुछ ना कुछ आपको, या हाईवे की अलाइनमेंट की प्रोफाइल चाहिए होगी, क्योंकि हाईवे की अलाइनमेंट प्रोफाइल में भी टोपो अटैच होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, डिपेंड करता है। तो या तो हाईवे हाईवे गूगल अर्थ, अगर हाईवे नहीं, जो गूगल अर्थ से डायरेक्ट अलाइनमेंट लगा के कर देगा तो उसमें शायद नहीं मिलेगा अवेलेबल। तो उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, चाहे गूगल अर्थ के थ्रू या अपने मैप्स के थ्रू देख दाख के कि कहाँ से कहाँ लेके जाऊं ब्रिज, कहाँ से क्या करूं। तो लेकिन होता ये काफी लोगों के साथ एक साथ बैठ के है, तुम अकेले सब कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे इसमें। और इसमें साइट पे भी जाके देखना पड़ेगा, साइट पे भी चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मैं अरेंजमेंट रख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सब सही है नहीं है। आया समझ में प्रियंका ये? जी सर। तो जनरली अगर तुम्हारे पास स्टील है, उसके तो हमारे पास कॉमन स्पैन अवेलेबल होते ही है हमेशा, 18, 24, 36, और ऐसी मतलब इन्हीं की लाइन में चलता है, 6 की लाइन में। और अगर तुम्हारे पास आरसीसी है, आरसीसी तो किसी भी स्पैन में रख दो, पास कर दो। पीसीएससी है तो वो भी देखना पड़ता है, अगर तुम्हारे पास पुराना कोई डिजाइन अवेलेबल है तो कोशिश करी जाती है कि उसी को सेम रिपीट कराने की, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है। टाइम क्यों वेस्ट करना, डायरेक्ट उसे चेप दो, लगा दो, क्योंकि वो पहले से ही अप्रूव होता है। अगर कोई या फिर बना हुआ होता है कोई ब्रिज बना हुआ है, तो उससे तो और फायदा होता है कि इसकी ड्राइंग इसके हिसाब से तो भाई ये पहले ही कास्ट हो चुकी है हर चीज, मतलब बन चुकी है, तो मतलब हाँ ये सबसे अच्छी चीज है अगर कोई चीज बन चुकी है उन ड्राइंग से और उन डिजाइन से। तो उसी को चेंज करके हल्का बहुत ज्यादातर करते रहते हैं, यही होता रहता है। मतलब एक तरीके से ये चीज चलती रहती है, लेकिन सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन हर ब्रिज का चेंज होता है, क्योंकि सॉइल हर जगह की अलग होती है, और उस हिसाब से फिर हमारे पियर की हाइट अलग होती है हर ब्रिज की। हमें नहीं पता किसकी हाइट सेम आने वाली है, किसकी अलग आने वाली है। पियर के साइजेज अलग होते हैं, क्योंकि ब्रिज चेंज हो जाती है, सुपर स्ट्रक्चर लगभग सेम मेंटेन कर सकते हो, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसमें ब्रिज में ज्यादा चेंजेस जो आते हैं वो आपके सुपर स्ट्रक्चर के नीचे आते हैं, पियर कैप में, पियर में, पाइल पाइल कैप या ओपन फाउंडेशन जो भी है। हाँ प्रियंका बताओ। जी सर, एक्चुअली वो बहुत माइडस सिविल के जो है रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, वो लोग यहाँ हाँ हाँ नेपाल में आए हैं, तो दे कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द मॉडलिंग एंड ऑल, हाँ हाँ। so I can like show हम्म, them the model and ask and all. Lekin हाँ because I'm using the cracked one, right? So they हाँ can हाँ fix it, हाँ obviously. हाँ हाँ। Do not show them the cracked version, man. If No, you no, have the no. original I mean, version, then you can huh, only discuss with them. if I no no obviously I don't have, like हम्म, my company they do have, like they have, but they have not provided us, right? एक साल का ओके ही था। हाँ, तो एक साल में ओके, खत्म एक हो साल का था वो, अब खत्म हो गया। गया। हाँ, तो क्या है कि ओके, अब मॉडल अगर मैं भेजूंगी तो दे कैन अंडरस्टैंड इट कि क्रैक में बनाया है, या फिर मॉडल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम एक काम करो, मॉडल मत दो। मुझे मालूम, इसमें कुछ लिखा हुआ आता नहीं, आता, एक मिनट। अच्छा, आपका तो लाइक ओरिजिनल है, राइट? मेरे पास दूसरे लैपटॉप में है, इसमें तो मेरे पास भी क्रैक भी है। अच्छा, आपको मैं ऐसे करूंगी, कोई बना के बीच में मॉडल बेचती हूँ तो आप देख लेना। जैसे क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती तो है एमसीटी में अभी, एक मिनट। हाँ भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा। लेकिन मुझे लगता है उन्हें पता तो चल जाता होगा, स्टैड में तो हाँ। हम स्टैड एडिटर की फाइल शेयर करके बच सकते हैं, लेकिन मिडास में एमसीटी फाइल होती तो है, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ होता है ये सब या नहीं, वो एक बार कंफर्म करना चाह रहा था। वही तो, लाइक दे वर आस्किंग, दे आर हियर ओनली, तो they even called me, like because I was in contact with them since very long. ओके So ओके ओके। yeah, so they were like we've been हाँ तो talking. तुम कह ये भी कह सकते नहीं, तुम्हारी डेट नहीं चाहती फिर ऐसा ना है। होता है कि कि फंस जाए। हाँ हाँ मैं समझ गया, नहीं It नहीं। won't be good, right? हम्म। A new one क्योंकि is like मिडास में एक ऑप्शन होता है mm-hmm. एमसीटी फाइल शेयर करने का, जैसे स्टैड में होता है स्टैड एडिटर फाइल शेयर कर दो, Mm-hmm. मिडास में एमसीटी होता है। तो अगर Mm-hmm. वो शेयर करें तो
क्या उससे फर्क पड़ेगा, मैं वो देखना पड़ेगा एक बार कि उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आती है। सर एक बार देखिए ना, मतलब दे विल बी हियर मतलब टिल ये फर्स्ट डे, सो हाँ हैंग हो गया, ये पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे एक लाइसेंस का भी ऑप्शन आता है, वो भी राइट, देख सकता हूँ मैं, हेल्प में। क्योंकि हो भी सकता है कहीं कुछ लिखा हुआ हो कि ये करेक्ट है या फिर कहाँ से कैसे है। ये चीजें होती हैं, उनको पता होता है वैसे तो। या दैट्स व्हाई ऑनलाइन इनको पता चल जाता है, ऐसे भी मैंने सुना है। हाँ अगर तुम्हारे, हाँ नहीं, अर्लियर कंपनी इट के वाज वेरी सर्वर डिफिकल्ट टू इवन गेट कम, द क्रैक वन, इसका ना बहुत पहले बहुत दिक्कत था। हाँ हाँ, मिडास नहीं मिलता था ऑनलाइन। नहीं मिल रहा था। 2019 इज द फर्स्ट वन आई गेस। हाँ 2019 में ही आया, तो वो आया था उसका क्रैक, उसके बाद फिर अब 22 का आ गया है, तो बढ़िया है। ये पता नहीं हैंग हो गया है क्या। कोई नहीं सर, आप बात आप कंटिन्यू कीजिए, बाद में देख लेंगे इसको। अरे मुझे इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना, वो मॉडल बनाने की। जी जी। सो इजी होता है कुछ मॉडल बना के। मुझे तो मेन चीज जो एक्सप्लेन करनी है वो करनी है उसकी, जो टायर प्रेशर लोड्स आएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर IRC 112। मे बी मेरे पास है नहीं तो मैंने कॉपी नहीं की कोड इसमें क्या, नहीं इसमें नहीं किया। यार एक्सेस, हुआ पता नहीं हैंग क्यों हो गया ये। इसमें कोड में जब एंड में जाओगे, यहाँ पे है एनालिसिस के बारे में, इफेक्टिव बिट कंसिडरेशन, ये है इफेक्ट ऑफ लाइव लोड ऑन डेस्क स्लैब। तो हमें ये निकालनी पड़ती है बी इफेक्टिव, और एक निकालनी पड़ती है डब्ल्यू इफेक्टिव भी निकलती है। तो हम यहाँ वो डिस्पर्जन लोड्स अलोंग द स्पैन, ये आ जाता है हमारा। एल इफेक्टिव भी होता है, एल इफेक्टिव भी बोल लेते हैं, या कुछ और भी डब्ल्यू इफेक्टिव। ये दोनों चीजें मेन। हाँ खुल गया। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। और मैं एक बार मॉडल बना के चेक करके देखूंगा क्या आता है। जैसे अब हमें इसका मॉडल बनाना है, ठीक है, इसका मॉडल कैसे बनाएंगे हम। ये यहाँ से यहाँ तक कितना कैंटिलीवर है, 1 मीटर, देन टू, 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 1.3, या 1 मीटर लेना चाहो तो, या 1.3 भी ले सकते हैं हम। पहले सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं, नोड एलिमेंट, क्रिएट नोड, देन इसको सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड में जाके अब यहाँ पे अपने अनइक्वल डिस्टेंस हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, वाई डायरेक्शन में। यहाँ मेंशन कर दो 1 मीटर, अगेन 3 × 3 @2, 1.3। ये मेरी बन गया। अब मैं एक बार चेक भी कर लूंगा कि सही है। जैसे ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 1.3, 1.3, देन ये 2, देन 2, 1 गटर, 2 गटर, 3 गटर, 4 गटर, 4 गटर आ गए मेरे। और ये हो जाती है मेरी स्लैब। अब प्रॉपर्टीज में जाके बहुत जल्दी हो जाता है ये वाला, तो हमें बहुत कुछ टाइम नहीं लगता। पहले जाओ प्रॉपर्टीज में, मटेरियल प्रॉपर्टी ऐड, यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट चाहिए। अब जैसे मेरा कुछ जो भी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्लैब का, IRC ISO M40 जैसे मैं यूज कर रहा हूँ 40, ओके। और सेक्शन दे दो, सेक्शन प्रॉपर्टी। अब सेक्शन में क्या देना होता है, सिंपल बीम की 1 मीटर विड्थ के लिए एच कितना दे देंगे, 0.2, और बी 1 मीटर। यहाँ पे मेंशन स्लैब,
तो ये मेरी स्लैब हो गई 1 मीटर विड्थ के लिए। अब दूसरा क्या करना होता है, इधर जाओ, बाउंड्री, डिफाइन सपोर्ट। तो इसमें जो ये दोनों हैं तो ये सब डी जेड को दे दो, और जो ये दोनों हैं डी जेड और डी वाई डी एक्स को दे दो। और इतना ही मॉडल आएगा मेरा, ये सपोर्ट आ जाएगा, ये आएगा। अब आते हैं लोड, स्टैटिक लोड। सबसे पहला क्या आ जाएगा, बस सल्फेट एस एफ लोड टाइप। दूसरा क्या आ जाएगा, बेरिंग कोट, क्रैश बैरियर। ये 3 लोड इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद कौन सा आना है, अगर कोई यूटिलिटी है तो वो, तो सल्फेट आएगा, बेरिंग कोट आएगा, क्रैश बैरियर आएगा। लाइव लोड से पहले मैं सोच रहा हूँ टेम्परेचर, स्लैब में टेम्परेचर नहीं देखते, जरूरत नहीं है। और कुछ नहीं आएगा, लाइव लोड ले लो। लेकिन अब लाइव लोड जो होते हैं वो काफी सारे आते हैं। लाइव लोड केस 1 केस 2 ऐसे करके लेने होते हैं। केस 1 एंड केस 2 एंड केस 3, जस्ट शोइंग यू। ये आ गया, तो लोड में जाके अपने सबसे पहले सल्फेट ही अप्लाई कर लो, दैट -1 एट सल्फेट अप्लाइड हो गया। अब हमें क्या अप्लाई करना है, जो नोडल लोड क्रैश बैरियर का लोड है। तो क्रैश बैरियर याद होगा हमने जो उसका एरिया कंसीडर किया था, 12.5 कंसीडर किया था। तो 12 पॉइंट नहीं, हाँ 12.5, so for 1 meter width it will remain 12.5, so direct nodal load minus 12.5। थोड़ा ये कंजर्वेटिव देगा, वरना तो हम यहाँ तक अपना क्रैश बैरियर को 0.5 कंसीडर करके तब लगाते, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये अपने ये आ गए। और फिर तीसरा बचता है एलिमेंट, और ये बचता है हमारा वेरिंग कोड। क्रैश बैरियर गलत अप्लाई हो गया जो मेरा, चलो वेयरिंग कोड के बात कर लेंगे। वेयरिंग कोड कितना इमेजिन किया हमने, किया था 80 mm, so 0.08 into 22, 0.08 into 22, it will give 1.76 minus 1.76। ये भी पूरे पे अप्लाई कर लो, कोई इतना इशू होता नहीं है। अप्लाई, और नोडल लोड अगेन इट शुड बी इन क्रैश बैरियर, this अप्लाई, और यहाँ आ जाओ तो ये तीनों लोड अप्लाई हो गए। तो ये हो गए। अब क्या कर सकते हैं हम, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये है मेरा स्लैब। अब जो लाइव लोड पे डिस्कशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या होता है। डिस्पर्जन क्या होता है, जो हमारा टायर होता है, आपको पता होगा कि टायर एज ए पॉइंट लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, टायर एक स्क्वायर प्रेशर के थ्रू अप्लाई हो रहा है। तो वो जो स्क्वायर प्रेशर जनरेट होता है वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बॉटम स्लैब तक। तो हमें बॉटम स्लैब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये। कि आप क्या कंसीडर करोगे इसमें, तो मैं जैसे पहले समझाता हूँ थोड़ा बहुत समझिए। ये सारी स्लैब में इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बॉक्स कन्वर्ट करोगे तब भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, स्लैब कन्वर्ट करोगे तब भी आएगा। जब भी स्लैब से रिलेटेड कुछ भी करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। बॉक्स कन्वर्ट में हमारी जैसे सॉइल फिल आ जाती है, फिर उसके हिसाब से कितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो भी
इसी के थ्रू ही आता है। और फिर अगर हमारा कुछ और है, जैसे वेयरिंग कोड बहुत ज्यादा है या कुछ और अपनी थोड़ा बहुत बफर है और किसी की वजह से या सॉइल की वजह से, तब भी हमें इफेक्टिव बिट निकालनी पड़ती है। इसी वजह से हमारा बॉक्स कन्वर्ट में टॉप स्लैब में अगर जितनी ज्यादा सॉइल होती है उतना लाइव लोड कम होता चला जाता है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है। अब सॉइल जो है वो डायरेक्ट तो लाइव लोड प्रोवाइड नहीं कराएगी अपने इसमें, टॉप ऑफ स्लैब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए हमें लाइव लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो लाइव लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, जैसे ये है मेरा 70 आर, तो ये जैसे एक टायर समझो। तो अगर मैं इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे करके, ऐसे, और ये ऐसे 45 डिग्री एंगल। तो मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस। तो ये जो निकालते हैं ये हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जो एक मिनट, आवाज आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। तो अब ये जो गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ये होता है बी इफेक्टिव, इफेक्टिव विद इन वन डायरेक्शन। और ये किस डायरेक्शन में होती है, ट्रांसफर डायरेक्शन में, जो इधर मॉडल कर रहे हैं। समझ गया? ये इस डायरेक्शन में इफेक्टिव, लेकिन कभी हम इस डायरेक्शन में भी निकालते हैं, जैसे हमारा बॉक्स कन्वर्ट होती है तो हम इस डायरेक्शन में भी निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अभी लेकिन हम किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, अभी हम निकाले हैं अक्रॉस दी लाइव लोड। तो इसका फॉर्मूला होता है बी इफेक्टिव अल्फा इंटू ए, 1 - अल्फा अपॉन एल नॉट प्लस B1। अब ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, शायद मैं एक बार, मैं इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा समझ से ही आता है, वरना अगर कैलकुलेशन नहीं देखा होगा तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मुझे क्या चाहिए, ये फॉर्मूला है, मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट से लेके अपने कॉपी कर लेता हूँ। तो बी इफेक्टिव जो आएगी मेरी, किस पे डिपेंड कर रही है, पहले अल्फा ए, 1 - A/L0 प्लस B1। तो मैं यहाँ पे जैसे अल्फा का सिंबल इंसर्ट कराना पड़ेगा मुझे, मैं डायरेक्ट कॉपी हो रहा है यहाँ से। लेट मी ट्राई। नहीं हो रहा कॉपी, तो मैं जैसे लिख ही देता हूँ। अल्फा, अल्फा निकालना होगा, ए निकालना होगा, एल, ए, L0, देन B1। तो ये चार चीजों पे डिपेंड करेगा मेरा बी इफेक्टिव। और इसके ऊपर लिख दूं जैसे मैं, बी इफेक्टिव, बी ई एफ। अब अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इज अ कांस्टेंट हैविंग वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बी अपॉन एल, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ स्लैब। तो बी जो डिपेंड, ये अल्फा डिपेंड करता है बी अपॉन एल नॉट के रेशियो पे। और एल नॉट क्या है, एल नॉट है इफेक्टिव स्पैन। समझ में आ रहा है? एल क्या है मेरा, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब के लिए मेरा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन जो हो जाएगा, हेलो आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, हेलो?
हाँ, हाँ, क्योंकि यस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एल नॉट क्या हो जाएगा, मेरा एल नॉट होता है जो मैंने मॉडल किया है, जो मेरी ये सपोर्ट कंडीशन, ये 2 मीटर मेरा एल नॉट हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन। ये होता है मेरा इस स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पैन। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से निकालूंगा। हम्म, और कोड में भी आ जाते हैं। विड्थ ऑफ स्लैब, यहाँ पे जो एल नॉट है ये टोटल स्पैन होता है। यहाँ जो एल नॉट है ये मेरा इफेक्टिव स्पैन है, जो कि मेरा 2 मीटर आएगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब और ए जो है, ए जो होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट। तो अब इसके लिए हमें अपने टायर का अरेंजमेंट भी देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कैसे टायर कहाँ पे हमें कंसीडर करना होगा। तो ये ए भी इंपॉर्टेंट होता है निकालना। एल नॉट तो चलो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे एल नॉट आ रहा है मेरा 2 मीटर। ये और बी वन डायरेक्ट आ जाता है, बी वन में ही बता दूंगा, ब्रेड्थ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लोड दैट इज द डायमेंशन ऑफ टायर ऑफ ट्रैक कॉन्टैक्ट। जब हम अभी बता दूंगा, ए निकालना है, अल्फा निकालना है और ए निकालना है। ए होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर। अब इसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा थोड़ा पेन में समझने के लिए। मैं इसको क्लोज करके दोबारा मे बी, हाँ हाँ, थोड़ी हिस्ट्री रखनी पड़ेगी अपने को। स्लैब रख लो, स्लैब में गर्डर का, क्योंकि ये थोड़ा अब समझ में तभी आएगा। हाँ, जैसे अब यहाँ पर है, ठीक है, मैं अब मेरी मुझे पता है यहाँ पे मेरा क्रैश बैरियर है। अब मैं अगर स्लैब जो मेरी दोनों, पहले तो एक तो मुझे कैंटिलीवर भी चेक करनी, मतलब लोड अप्लाई करना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो मेरी दो लोड, एक तो होता है 70R, एक होता है क्लास ए लोडिंग, ठीक है, दो के लिए करते हैं। 70R में गवर्निंग क्या होता है पिंस में, इसमें गवर्निंग होता है बोगी लोड। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरा गवर्निंग होता है बोगी लोड स्लैब के लिए, क्योंकि ये देता है 20 टन। 20 टन मीन 10 10 टन वो साइड। लेकिन अब इसकी जो ये निकालनी पड़ती है हमें फिर। टायर टायर की विड्थ कितनी गिवन है यहाँ पे, 0.86। लेकिन ये मेरी विड्थ गिवन है, ये प्रेशर की नहीं गिवन है। अगर हमें प्रेशर की, जैसे अब मैं लाइव लोड का दिखाता हूँ, उससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ये देखो, लाइव लोड में ये चीज देख रहे हो, बी, और ये मेरी डब्लू, ये होती है मेरी टायर प्रेशर विड्थ, और अलोंग बी उसकी लेंथ जितनी भी आ रही है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, बी लिखा हुआ है और डब्ल्यू भी लिखा हुआ है। तो क्लास ए का तो हमारे पास गिवन होता है, लेकिन क्लास उसका 70R का हमें निकालना पड़ता है थोड़ा, वो भी बताऊंगा। तो जैसे हम क्लास ए का कंसीडर कर रहे हैं, तो बी कितना है, 250। 250 क्या है हमारा, इस डायरेक्शन में, और डब्ल्यू क्या है हमारा, 500। तो मुझे क्या कंसीडर करना होता है, ये यहाँ पे अब मेरा एक टायर है, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, 0.5। ये मेरा टायर है और यहाँ दूसरा टायर है, और फिर इसके ऊपर मेरी जो भी, सबको पता है व्हीकल आ जाती है ऐसे करके। ये कितना गिवन है, 0.5। अब हमारा कोड क्या कह रहा है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से नियर बाय सपोर्ट का डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालना होता है मुझे ए के लिए, जैसे ए। अब ये कितना बनेगा, यहां से यहां तक। अब मुझे पता है मेरा हाइयर कितना, 1.3 है। एक साइड 1.3 है, एक साइड 1 है। तो मैं 1.3 को ले लूंगा, तो ये कितना माइनस हो जाएगा, 0.5 माइनस हो गया, ठीक है। 0.5 के बाद यहाँ कितना गिवन है, 0.15। सो 0.5 प्लस 0.15 प्लस 0.25, कितना हो गया ये अराउंड 0.4 प्लस 0.5, 0.9, और टोटल डिस्टेंस कितना, 1.3। 1.3 माइनस
0.9, आई एम गेटिंग 0.4। तो ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो मेरा ए कितना आ गया 0.4, नहीं अल्फा आया 0.4। गुड फॉर अल्फा, दिस इज, नहीं अल्फा तो कांस्टेंट आएगा ना, ए आया ना, ए आ गया, डिलीट। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, ए आ गया और एल नॉट आ गया। अब मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए थोड़ा कोड में जाना पड़ेगा क्योंकि ये कोड से ही आता है। ये टेबल गिवन है, ये है बी बाय एल नॉट का रेशियो। तो बी कितना है मेरे पास, हाँ ये इसमें एल नॉट भी छोटा ही रहेगा कि बी है मेरे पास, इफेक्टिव विड्थ नहीं है, मतलब टोटल विड्थ। बी है कांस्टेंट हैविंग फॉलोइंग द वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द रेशियो बी, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ स्लैब। Width of slab, like total width, provided that effective width shall not exceed the actual width of slab, and the provided further in case of load near to the unsupported edge of slab, the effective width shall not exceed the above value nor the half will present or load or unsupported edge। तो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 इंटू, मैं इसमें भी देख लेता हूँ अपनी ड्राइंग में, या आप ड्राइंग से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की विड्थ चाहिए। ये आ रही है 8300, और एल नॉट टोटल स्पैन कितना मेरा 20 मीटर से कम था, करीब 19 मीटर था, 19 और 18 समथिंग था, तो 19 ले लेते हैं। तो 8.3 डिवाइडेड बाय 19, 0.4 आ रहा है। अब ये मेंशन है कि मेरी स्लैब क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। जैसे मेरी अगर मुझे कास्ट करनी हो अपनी स्लैब कलवर्ट, उसके लिए अगर मैं देखता हूँ तो उसके लिए होता है ये वाला। अब मेरी क्या कंटिन्यूस स्लैब है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ये इसमें इंटरपोलेट भी करना होता है एक्यूरेट अगर निकालना हो, तो 1.4 मैं ले सकता हूँ अभी अभी के लिए, जैसे 0.4 आ रहा है, या अगर 0.5 के करीब आता है, करीब कितना आ रहा है ये 19, it is 0.44, so it is maybe between 1.68 and 1.44, so 1.68 plus 1.44 divided by 2, I'm getting not this, divided by 2, 1.56। ये मेरा आ गया अल्फा, अल्फा आ गया 1.56। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ये B1। B1 किस पे डिपेंड करता है, B1 डिपेंड करता है आपके दूसरे टायर पे, दूसरी टायर की विड्थ पे। तो अगर हम कोड रीड करें, क्या कह रहा है कोड, कोड कहता है द ब्रेड्थ ऑफ कंसंट्रेशन एरिया ऑफ लोड दैट इज द डायमेंशन ऑफ टायर और ट्रैक कॉन्टैक्ट एरिया ओवर द रोड सरफेस ऑफ स्लैब in the direction right angle to the span plus twice the thickness of wearing coat or surface finish above the structural slab। तो मेरा दूसरे डायरेक्शन में कितनी है मिल रही है, जो मैंने अभी कोड में देखा 250, 250 प्लस दी ट्वाइस दी वेयरिंग कोट थिकनेस, यही बोलना है। स्लैब इन द डायरेक्शन राइट एंगल टू दी स्पैन, राइट एंगल वही होगा, प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वेयरिंग कोट और सरफेस फिनिश अबव द स्ट्रक्चरल स्लैब। तो ये जो होता है मेरा B1, ये आता है 0.25 प्लस 2 इंटू वेरिंग कोड कितना है 0.08, 80 mm। तो ये आ गया मेरा 0.1। अब बी इफेक्टिव आ जाएगा इसके थ्रू, इक्वल टू, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए, देन ब्रैकेट 1 माइनस ए अपॉन एल नॉट
ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब इसको एक और ब्रैकेट में रख लो, प्लस दिस देन B1 why it is showing something fishy. तो मेरी कितनी आ गई इफेक्टिव बिट 0.9. ओके, अब मुझे चाहिए होती है अपनी दूसरे डायरेक्शन में. अब दूसरे डायरेक्शन में कैसे निकलेगी, वो भी कोड में गिवन है डायरेक्टली. और ये ऐसा नहीं है, ये सारे कोड में गिवन है. आज तो का अलग फॉर्मूला है, यहाँ का अलग फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही फॉलो करना होता है, कुछ स्पेशल इसमें नहीं है. अब मैं जाता हूँ अपने इसमें कोड में. ये तो हो गई मेरी ट्रांसफर डायरेक्शन में, बी इफेक्टिव जिस डायरेक्शन में मेरी स्लैब मॉडल हो रही है. अब दूसरी आती है ये अलोंग द स्पैन, मतलब जो मेन स्पैन है उसके अलोंग, मेन स्पैन में it will be taken as in the direction span shall be taken equal to the dimension of tire contact area over varying surface of equal to the dimension of tire contact area over the varying surface of slab in the direction of span plus twice overall depth of slab inclusive of thickness of varying surface. तो ये समझ में आया ये क्या बोल रहा है? Anyone able to understand? जी. ये कह रहा है स्पैन के डायरेक्शन में जो भी टायर का प्रेशर वो आ रहा है इनटू 2 0.2 जो भी एक अपने पास वेरिंग कोट है और थिकनेस है. तो ये जो होता है इसको लिख देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लोड अलोंग स्पैन. तो इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्पर्जन को, इसकी कोई लिखता है. और ये क्या था मेरा इफेक्टिव विड्थ. Solid slab is spanning in one direction. The bending moment per unit width of slab caused by concentration. एल इफेक्टिव टाइप होगा जो फाइनल जो निकलेगा अपना. हाँ हाँ, दोनों निकालने पड़ेंगे फिर हम हाँ उसको हाँ, करना है बस. लॉन्गिट्यूडनल में. जी. इफेक्टिव विड्थ ही कहते हैं. डिस्पर्जन ऑफ लोड. अब ये जो लिखूंगा मैं इसको, ये किसके इक्वल होगी, जो मेरा टायर है स्पैन के डायरेक्शन में कितना है 500, तो 0.5 प्लस 2 इंटू 2 थिकनेस ऑफ स्लैब 0.2 प्लस बेयरिंग कोट 0.08. this one, so this will come 1.06. so now both have been come. अब क्या करना होता है हमें, अब हमें इसको डिवाइड करना होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लोड निकालेंगे हम. इंटेंसिटी ऑफ कितना हमारा लोड अप्लाई होगा उस पे स्लैब के ऊपर. तो ये जैसे अब इसको निकाल लिया हमने, इंटेंसिटी ऑफ लोड लिख देता हूँ. अब वो कैसे निकलेगा, जैसे हम ये कर रहे हैं 70, ये क्लास ए के लिए कर रहे हैं. तो क्लास ए में हाईएस्ट लोड कितना होता है
ये होता है हमारा 11.4 57। तो 57 को हम डिवाइड करेंगे। तो 11.4 दिया है ना? हाँ, तो 11.4 टन में है ना, किलोन्यूटन में कन्वर्ट करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 59। हाँ, इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, और फिर इससे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 59 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख भी सकते हो, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अब क्या आता है हमारा, अब आता है इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर। क्योंकि इसको क्या करना होता है, हमें इम्पैक्ट फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर तो हम कर लेंगे, उसमें कुछ इतना इशू होता नहीं है। लेकिन अभी एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमें फिर से इसको, हाँ यस, 59 तो आ गया, लेकिन ये है डिस्पर्जन ऑफ लोड अलोंग द स्पैन और इफेक्टिव वेट। दो चीजें आ गई। अब हाँ, अब इसको क्या करना होता है, क्योंकि हमें इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या अलोंग द स्पैन है, तो इसको दोबारा से एक बार मल्टीप्लाई कर देना होता है इसके थ्रू। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मोमेंट, हाँ, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर मैं निकाल के देखूँ, एक मिनट, जस्ट चेकिंग समथिंग। हाँ सही। क्यों करा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं इतने, नहीं नहीं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, इससे करूँगा, इससे करूँगा, जिसमें, एक मिनट, इससे डायरेक्शन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इससे करता हूँ, और एक मिनट, क्योंकि ये मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक बार। हम्म, ये तो आ गई मेरी इफेक्टिव विड्थ, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड डिस्पर्जन अलोंग द लोड, इससे मल्टीप्लाई करके इतने में तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा। इससे मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि मुझे इतने डिस्पर्जन में मुझे अपने लोड अप्लाई करने हैं। मीन्स कि जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई करूंगा, वो 1.1 मीटर डिस्टेंस तक करूंगा सिर्फ। कितना है ये, 1.1 अल्टी, अगर आप ले लो, ये 54 हो गया। अब ये होती है एक डायरेक्शन, हो गया। अब इसका ना दूसरा टायर आएगा, ये होगा फॉर टायर 1, टायर 1। कॉपी कर लो इसको यहीं पे, फॉर टायर 2, क्योंकि मेरे दो टायर होंगे ना, तो इसको अगेन कॉपी कर लो यहाँ पे। चेंज होगा, कोई बता पाएगा? हेलो, ये है मेरा दूसरा टायर यहाँ पे, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, मेरा सिर्फ ए चेंज हो जाता है।
होता है, जो डिस्टेंस होता है इस सपोर्ट से। तो ये मेरा कितना आ रहा था इस सपोर्ट से यहाँ पे 0.4, और मुझे पता है कि मेरा सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस होता है 1.8, तो 1.8 माइनस 0.4, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ये भी लिख सकता हूँ कि दिस 1.8 माइनस 0.4, नहीं ये तो इसी से ही आएगा, हाँ इतनी विड्थ के लिए ओके 0.4 आएगा, तो ये सेम कैसे कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप इन दोनों से, ठीक है, ये आ गया 50, ये आएगा। अब ये कितने मीटर डिस्टेंस पे जा रहा है, हाँ ऊपर वाला देखें 0.9 और 1.1, तो 0.9 का मतलब क्या हो रहा है, ये बी इफेक्टिव है 0.9, और कहाँ से कहाँ तक है ये 0.9, क्योंकि मेरे टायर का सेंटर जो है वो यहाँ है, इससे 0.4 मीटर डिस्टेंस पे है, इसके फेस से, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा 0.5 लेफ्ट साइड 0.45 एंड 0.45 0.9 इज देयर ना, हाँ 0.45 राइट साइड, तो बोथ डायरेक्शन आई रिक्वायर्ड 0.45, तो 0.9 जो है वो इतने इतने एरिया में अप्लाई करना है सर। दिस मच एरिया will be covered by my effective width, and this much area will be covered by this 1.1, तो अब ये जो अप्लाई करना होगा, अब ये आ रहा है यहाँ से 0.45, और मुझे पता था यहाँ से डिस्टेंस कितना था, ये 0.4 था, तो 5 mm उधर जा रहा है 0.05, तो मैं उसको इग्नोर करके डायरेक्ट 0.9 कैंटिलीवर पर अप्लाई कर दूंगा, और इधर कितना 1.1 उसकी भी अभी करें। अब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस था 1.4, तो 1.4 के बाद हाफ लेना है हमें, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको थोड़ी माइंड में भी करनी पड़ जाती है कि 1.4 तो इसका सेंटर था, सेंटर से हाफ कितना आ गया 0.55, so 1.4 minus 0.55, how much it will become 1.4 minus 0.55, it will be 0.85, तो 0.8 से ले लूंगा, थोड़ा ज्यादा ही लेके चल लेते हैं, इतना वो नहीं होता है। तो अब हम जाएंगे मॉडल में, ये हमारा मॉडल है, अब यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है मुझे 0.9 लेना है। अब बीम भी कहाँ से कंस्ट्रक्ट करिए, इस साइड से, तो मैं जाऊंगा अपने लोड में, एलिमेंट, अब देखो डिफरेंट कमांड का यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इसका एब्सोलूट, एब्सोलूट में 0 से लिखूंगा 0.9, और कितना लोड अप्लाई करना है 63 माइनस 63, अब ये कौन सा केस होगा, लाइव लोड 1, और इसको सिलेक्ट करो, दिस इज माई टायर प्रेशर लोड। अब दूसरा लोड कहाँ से चालू हो रहा है, दूसरा लोड इसके डिस्टेंस से चालू हो रहा है 0.8 से, 0.8 से कहाँ तक जाना है उसे 1.1 तक जाना है, तो 0.8 प्लस 1.1, so I can consider 1.2, so I will start it from, अब मुझे अप्लाई करना है यहाँ से यहाँ तक का लोड, ये जा रहा है मेरा 1.2, और ये कितना है 3.5, 3.5, I will select this beam,
तो ये एक टायर प्रेशर का लोड हो गया, ये दूसरे टायर प्रेशर का लोड हो गया। तो ऐसे करके हमें सारे लाइव लोड अप्लाई करने होते हैं एज पर अवर सपोर्ट कंडीशन। ये आया समझ में? ये हो गया एक लाइव लोड का केस। अब इसके बाद दूसरा लाइव लोड का आएगा कि फिर मुझे क्या करना होगा, इसके सेंटर और उसके बीच, हाँ वो 3.5 का डिस्टेंस आता है ना यहाँ से, देखिए जो यहाँ से डिस्टेंस आता है दूसरी व्हीकल का, तो वो व्हीकल यहाँ आएगी कहीं, और फिर उसका दूसरा टायर यहाँ कहीं होगा। मतलब सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं हम। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 3.5 एज पर कोड इट इज गिवन, दिस इज 3.5। तो अब इसका निकालने के लिए अगेन हमारा क्या चेंज होगा, सिर्फ हमारा अल्फा, हमारा ए चेंज हो जाता है कि सपोर्ट कंडीशन से ये कितनी दूर है, फिर ये सपोर्ट कंडीशन से कितनी दूर है। बाकी चीजें हमारी वही रहेंगी। ये भी निकाल लेते हैं अभी, एक सेकंड। वन मोमेंट। नो दिस, ये आया समझ में? नहीं आया? इसमें कोई डाउट है अभी भी? क्योंकि ये थोड़ी नई चीज है, इसलिए मैं थोड़ा बना के हर चीज समझाइए। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस था, 1.4। यहाँ से फिर यहाँ पे 3.5 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 1.4, 4.9। तो मेरे पास ये गटर का डिस्टेंस है 2 मीटर, फिर दूसरे गटर का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 4 मीटर कवर हो गया। अब इस गटर के बाद आएगा मेरा टायर, वो भी 0.9, तो 0.9 मैं यहाँ ले लूंगा अपने इसमें। दोनों लोड मिल गए मुझे 0.9, ये भी 0.9 हो जाएगा क्योंकि वो उसके 1.8 के दोनों साइड होगा, 0.9 बीच में आएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि अगला फिर गर्डर क्या होगा, 0.9 पे आ जाएगा। 0.9 के बाद 1.8 पे आएगा डिस्टेंस, और 0.9 क्लियर करके, हाँ 0.9 ही आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है मेरा कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1.2 पे, इधर भी 1.2 पे है। और ये कौन से मारा है, चौथे वाले गटर में। तो मैं यहाँ लोड में जाके, ये आ रहा है इस गटर के इस साइड, और 0.9 एक इस साइड आएगा यहाँ पे, और एक यहाँ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक मुझे यहाँ के बाद चाहिए, तो मैं इसको चालू करूँगा 1.2 से, 1.2 से नहीं, 0.8 से 2 मीटर तक ये वाला गटर। और इसमें कितना मुझे लेना है, 48.2, 40, ओके क्योंकि माइनस नहीं लिया, एक ये आ गया, और दूसरा यहाँ आएगा। ये मेरा है 1 मीटर का, तो इसमें पूरा का पूरा ही अप्लाई कर देता हूँ मैं। इसको हटा दो, रिलेटिव कर दो 0 to 1। So now this is one live load case we have created. Now any doubt in this? Hello?
ठीक है ठीक है। क्योंकि ये अगर आप फिर अपनी बॉक्स कन्वर्ट के लिए स्लैब बॉक्स कन्वर्ट डिजाइन करोगे तब भी यही करना होगा, आप अगर स्लैब कन्वर्ट करोगे तब भी, और आपके पास कोई भी स्लैब आएगी, यहाँ तक कि अगर हम बॉक्स गटर का ट्रांसवर्स एनालिसिस करते हैं उसमें भी यही करना पड़ेगा, कुछ भी आएगा हमारा ट्रांसवर्स एनालिसिस ब्रिज का, सब में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, इसलिए ये मैंने पूरा एकदम फॉर्मूले के साथ सब कुछ कोड के हिसाब से पूरा समझाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये हमने निकाल लिया जैसे क्लास ए का, अगर आप क्लास 70 अपना ये देखेंगे, इसमें थोड़ा इशू है, दिक्कत ये है क्योंकि इसमें टायर की विड्थ तो दी हुई है लेकिन हमारा लेंथ कितना आएगा, जो कि वहां पे 250 था वो नहीं गिवन होता है, यहाँ पे पॉइंट तो, लेकिन यहाँ पे एक चीज गिवन होती है, हमारा मैक्सिमम टायर प्रेशर। तो जैसे मैक्सिमम टायर प्रेशर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हम इसको क्या करते हैं, अपने कन्वर्ट करा लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उससे हमारी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। तो वो कितना हो जाएगा अपना, वो हमारा 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, तो 527.3 हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम क्या गिवन है, 527.3 मैक्सिमम टायर प्रेशर गिवन है, ठीक है, मैक्सिमम पी वाई टायर टायर प्रेशर, और टायर की विड्थ कितनी गिवन है मेरे पास, एक 0.86, अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ 0.86 इज गिवन। अब हम इसको मैक्सिमम हमारे पास गिवन होता है टायर प्रेशर डिवाइड करके, हमने क्या निकाला होता है, एक मिनट, कि हम इसको चेंज कर देते हैं इसमें, हाँ मैक्सिमम लोड चाहिए होगा, क्या चाहिए होता है इसमें, एक चीज़ और चाहिए होगी हमें, दो दो चीज़ें तो नहीं, ये तो टायर प्रेशर हो गया, मुझे एक लोड भी चाहिए होगा जैसे 100, हाँ 100 मेरा हो गया, 100 हो गया मेरा, हाँ ये पॉइंट लोड, ये प्रेशर नहीं है पॉइंट लोड है, हम प्रेशर निकाल रहे होते हैं, तो 100 पॉइंट लोड, इसको और ये क्या है मेरा गिवन है। अब टायर प्रेशर हम कैसे निकाल रहे होते हैं, कि पॉइंट लोड को हम डिवाइड कर रहे होते हैं हम इससे, ओके, तो मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो ये जो निकलेगा, ये जाएगा अपना इक्वल टू टायर प्रेशर 100 डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ जाता है मेरा 220 एज पर दिस अरेंजमेंट। अगर आप कोई दूसरा अरेंजमेंट कंसीडर करोगे तो उसके लिए फिर चेंज हो जाएगा, जैसे मैं अगर कंसीडर कर लूँ 17 टन, तो 17 टन कितना लोड देगा मुझे, 17 टन डिफरेंट देगा, वो उतना, सो वो देगा 85, अगर मैं यहाँ 85 लिखूँ तो इसके लिए और कम हो गया। और इसमें एक और चीज़ भी होती है कि ये हम इतना ना लेके
76 भी ले लेते हैं, थोड़ा कम भी करते हैं, तो ये फिर 250 आ जाता है। और कहाँ तक जाता है ये? 260 तक तो जाएगा, यहाँ से 260, 74 या 76 भी, ये भी ले सकते हो आप। 76 भी 10 mm कम भी कर देते हैं कि थोड़ा इधर बैलेंस हो जाए। तो ये फिर ये हमें टायर अरेंजमेंट यूज करना होता है यहाँ पे इन बाकी चीजों में। तो ये पूरी की टेबल अपडेट हो, उसमें फिर हमारा ये एल नॉट तो सेम रहेगा, ए अपडेट होएगा, अल्फा सेम रहेगा, और बी वन भी अपडेट होगा। बी वन कैसे अपडेट होगा? क्योंकि अब मेरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो चेंज हो गया, ये 0.25 आ गया। ये आया समझ में? ये हो जाता है जैसे अगर आपको करना है फॉर 70R, और ये हो जाता है क्लास ए। और क्लास ए, अब इसमें कंडीशन ये होती है कि मैंने एक तो लोड यहाँ लगाया, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये लोड बीच में भी लगा के देखता हूँ, मतलब अगर मेरी व्हीकल बिल्कुल ही बीच में है तो मैक्सिमम एक कैंटिलीवर पे देखना होता है जो मैक्सिमम हॉगिंग देगा, एक बीच में लगा के देखना होता है जो मैक्सिमम सैगिंग देगा। फिर इसीलिए मैंने लाइव लोड केस 1 2 3 बनाए कि अलग अलग केसेस में हमें अलग अलग अरेंजमेंट लगा के चेक करने पड़ते हैं कि कोई क्या पता हमें कौन सा केस गवर्न कर जाए। क्योंकि जो हमारा कैंटिलीवर होगा वो क्लास ए के लिए करेगा, और जो सैगिंग होगा वो 70R की वजह से करेगा, क्योंकि वो टायर बीच में आ जाएगा अराउंड वन। क्योंकि आप अगर, हमें मालूम है सपोर्ट से यहाँ से यहाँ तक जो क्लियरेंस लेके चलते हैं 70R में, वो आती है फिर 1.2, तो 0.5 ये पहले से ही है, 1.2 तो 1.7, तो वो पहले ही अंदर आ गया वो टायर पूरा। उसके बाद हमारी टायर की विड्थ अगर मैं 0.76 ले रहा हूँ तो उसका हाफ करेंगे, 0.76 का हाफ 0.76 डिवाइड बाई 2, 0.38 प्लस 0.5 प्लस 1.2, तो इट इज कमिंग अराउंड 2.08। तो मेरा सपोर्ट से 2.08 आ रहा है, और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 1.3, तो 2.08 में से जब मैं माइनस करूंगा 1.3, तो मुझे ए मिल जाएगा 0.78। तो मैं जैसे अगर इसको कॉपी कर लूँ, सर बहुत देर हो गया सर, थोड़ा बस हाँ हाँ, कीजिए। बस ये खत्म हो जाएगा तो हम न्यू चालू सर करेंगे। आपका 2 घंटा का लेक्चर, हम मेरा 5-6 घंटा का लेक्चर हो जाता है। एक मिनट एक मिनट, नहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं एक ही बार में समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम नहीं दोबारा सर, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो हम्म, लेक्चर बड़ा हो जाता ना। अब जैसे पढ़ा देते हैं तो हम लोग को रिकवर करने में एक एक सप्ताह चल जाता है एक ही लेक्चर में। हाँ कोई नहीं सही कोई है नहीं। सर। तो ये समझ में आ गया ना बेसिकली, इसमें बस मुझे ए चेंज करना पड़ेगा, एल नॉट सेम रहेगा, अल्फा भी सेम रहेगा, और बी वन चेंज करना पड़ेगा। बी वन में यहाँ पे 0.25 भी आ रहा है तो ये भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये भी 25 भी आ गया है। सिर्फ अल्फा चेंज होगा, ये अल्फा चेंज हल्का सा ही होगा, और ये चेंज होगा अपना, ये तो पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे डायरेक्शन में अलग, हम 0.5 ले रहे हैं जबकि वो हम 0.76 आएगा, 76। और ये कितना आ गया मेरा अल्फा का पॉइंट, कितना निकाला था 2.08 माइनस, बस मैं दिखा देता हूँ ये 2.08 माइनस 1.3, हाँ 0.78, तो ये था 0.78, 0.25 ही है, तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो ये 50 आ गया जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, ये 100 आएगा, मैं तो सोची काफी ज्यादा है, ये आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये 1.93 हो जाएगा।
ये सीख है, ये ठीक है, ये 100 हो गया। ये आ गया, तो ये दोनों लोड आ गए मेरे फॉर 70 आवर। तो ये फिर ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे उसी तरीके से, जितने डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके उतनी इतनी विड्थ तक 1.12 1.2 1.2। और फिर बस कुछ नहीं करना है हमें, फिर तो ये एज ए बीम बिहेव करके सिर्फ वही .87 FI EST री प्रोवाइड कराना देना है मूवमेंट के हिसाब से। इसमें कोई शेयर चेक शेयर कैप बस एक शेयर का कैपेसिटी चेक कर लेते हैं कि शेयर कैपेसिटी ठीक आ रही है, शेयर इन्फोर्समेंट देते नहीं है स्लैब में। तो अगर शेयर में फेल करता है तो विड्थ बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज छोड़ देते हैं, कुछ नहीं, सेम 200 काफी है। अगर शेयर में फेल होता है तो 250 कर देंगे, 220 कर देंगे, 225 कर देंगे, 275 कर देंगे। इसी वजह से विड्थ चेंज होती है अगर शेयर में यहाँ पे फेल होने लगता है। तो यही स्लैब का डिजाइन होता है और इसमें कुछ इतना स्पेशल होता नहीं है। ब्रिज की स्लैब में हमारे पास दूसरी बिल्डिंग की है तो उसका अलग होता है, 1 वे 2 वे देखना पड़ता है। ब्रिज की हमेशा 1 वे डिजाइन होती है, हमेशा ट्रांसफर डायरेक्शन में। ओके, तो बाय ऑल। और अगर इसमें भी कोई डाउट हो या गटर में, तो हमारा एक जैसे पीसीएससी ब्रिज कंप्लीट हो गया, वो भी सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन में नहीं गए, अभी हम सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो क्लोजिंग दिस, बाय, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।